While we wait for the student to fill question from last class. You can just continue. So we were talking about different Maxwell equation. So far we talked about two scenarios, or we talked about only about electric field. So we calculated the divergence of the field as well as the curl of the field. So when we do the divergence of the field, in that case we get first Maxwell equation, and curl of the electric field comes out to be zero. Just let me see who is there. So we calculated that curl is equal to 0. But if you recall, when we listed the Maxwell equation, in that case, curl of the electric field was not 0. Right? There is specific reason for that, because if we are in the situation of static magnetic field, in that case, this will be equal to 0. Right? Static means it does not change with the time. So if we have the constant magnetic field, in that case, we'll have the del cross E equal to 0, which we drive just now. But to drive this one, we'll come back to Faraday's law, which you already discussed in your last one or plus two somewhere. After electric field, we have to see what type of equation we can obtain by using standard law of magnetic field. In magnetic field, we'll see or consider the case of some current carrying system, or say current carrying wire. And you have discussed about this stuff. For example, we have a wire which carries a current, linear wire current carrying a current I. So this current carrying wire will produce a magnetic field around this wire, or around this axis, you can say. And magnetic field due to this current carrying wire at any point P can be written like by this formulation. We have this constant and integration over I cross R hat, and keep in mind this dl prime is the length element on this current carrying wire. Okay, and R is this distance from the wire and the point where we have to evaluate the effect of magnetic field. If you recall, this formulation is known as Biot-Savart's law, right? So this is just a rearrangement of term that this current element is along the length element. So what we can do, we can take direction of current same as that of लेंथ. सो जो लेंथ एलिमेंट है उसको हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, करंट को हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया. सो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है, इसका कुछ ज़्यादा इशू. म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की. व्हेन वी कंसीडर a situation in some medium, then it will change to simply mu, which will have the effect of the medium as well. dl prime is the length of the length element, and I is the current in the wire. So this law which we have in our hand, this is Biot-Savart's law, और ये श्योर कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में पढ़ा है प्लस 2. ठीक है, तो अगर हम इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं, दिस लेंथ ऑफ दिस वायर इज टू लार्ज, तो उसके लिए फॉर्मुलेशन आपने पढ़ी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस केस में दिस कम्स आउट टू बी म्यू नेट आई बाय 2 पाई एस. एस क्या है, नोटेशन थोड़ा सा डिफर करेगा. एस यहाँ पे ये रेडियस है, हालांकि मुझे इसको फिक्स करना चाहिए था
कि जिस पॉइंट पे भी आपको कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस एस है। यहाँ पे आर भी लिखी हो सकती है कुछ बुक में एस। तो अगर हम ये जनरल फॉर्मुलेशन है किसी भी करंट कैरिंग वायर की, बट if we have infinite length of wire, in that case we'll have the formulation of mu naught I by 2 pi s। तो हम सिर्फ इसी केस के साथ डील करेंगे अभी के लिए, क्योंकि सिंपलेस्ट केस है जो हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जो भी कंक्लूजन इससे निकलेगा दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द सिचुएशन रिलेटेड टू करंट कैरिंग वायर। ओके, सो लेट अस सी, फर्स्ट वी फिगर इट आउट कि मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल अगर हम निकालें तो क्या वैल्यू आती है। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुलेशन हमारे पास है दिस वन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई s। कर्ल लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं पहले, दैट वी हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड, और इसका लाइन इंटीग्रल इस कर्व के अराउंड निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, दैट वी हैव द दिस क्लोज्ड कर्व, so we will talk about line integral over the closed path। so b का फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करना है, और we have the length element। फिर i तो कांस्टेंट है, i तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब सिर्फ लेंथ एलिमेंट पे इंटीग्रेशन रन करना है। तो जब आप इस क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेशन निकालोगे व्हाट इट विल गिव, इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी 2 पाई s, है ना, सिर्फ सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई s विल लेफ्ट द म्यू नॉट I। तो जो क्लोज्ड कर्व के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है दैट इज म्यू नॉट I। उसके बाद हम इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें कर्ल निकालना है ना, तो कर्ल के लिए हम फर्दर थ्योरम लगाएंगे। उससे पहले आप करंट को सिंप्लीफाई कर लो। जो करंट का फॉर्मुलेशन है, दिस कैन बी रिटन एज एरिया इंटीग्रल ऑफ द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर हमें ये क्वांटिटी पता है तो टोटल करंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट में करंट निकाल लेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट अवर कंप्लीट एरिया। तो उससे हमें टोटल करंट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ये जो रिलेशन है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरी जो फॉर्मुलेशन यूज होगी वो है स्टोक्स थ्योरम, जो हमने मैथमेटिकल डिस्कशन के दौरान डिस्कस की थी, जिसमें हम लाइन इंटीग्रल और एरिया इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास B इंटू DL है, या मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, तो इसको हम एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल था दिस विल बी इक्वल टू एरिया इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो दो रिलेशन हमने निकाले, करंट का फॉर्मुलेशन एंड जो हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किए, इन दोनों को आप ऊपर वाली आइडेंटिटी में अगर यूज करेंगे, what you will get, you will have the area integral both side। तो अगर हम सिमिलर इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब इंटीग्रेंट सेम होगा। सो व्हाट इज इंप्लाई, कि जो डेल क्रॉस P है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट J। ये हमारी आई थिंक थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन थी जो लिस्ट में हमारे पास है। ओके, तो बाय डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स विद बायट-सेवर्स लॉ and the uses of some mathematical concept like Stokes theorem and definition of the current density, we can get the third equation। Okay, so keep in mind here we are not applying any correction। जो एक important correction है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। so अगर इसका फिजिक्स वाइज नेम देखेंगे, या जो कभी भी आपके सामने आता है नेम सिंपली एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ, there are different notation for this। so actually जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो डिफरेंट लॉज का कॉम्बिनेशन, सिर्फ उसने किया क्या था कि उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को चेंज किया था एक तरह से। ये सारे लॉज, जितने भी लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड लॉज थे, उनको सिर्फ एक कंसिस्टेंट फॉर्म में लेके आने का काम मैक्सवेल ने किया था। सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। उसके बाद हम ट्राई करते हैं डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस के लिए अगेन विल कंसिडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मुलेशन जो हम बायट-सेवर्स लॉ से डिस्कस करते हैं। सेम सिचुएशन है, बस ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया कि अब इसमें हमने r प्राइम भी साथ में लिख लिया।
आर प्राइम क्या है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोल्व करते वक्त यूज होती है, इसलिए इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आर पॉइंट हमारा इफेक्ट वाला पॉइंट है जहां पर करंट का इफेक्ट होगा, और आर प्राइम क्या है, जहां पर सोर्स है, जहां पर करंट सोर्स हमने रखा है वो हमारे आर पॉइंट प्राइम कोऑर्डिनेट है, आर प्राइम पोजीशन। तो हमें सोल्व इसको करना है सिंपल आइडेंटिटी, क्योंकि हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं दोनों तरफ। इस साइड डाइवर्जेंस लिया मैग्नेटिक फील्ड का, राइट हैंड साइड में लिया, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट है मल्टीपल, जैसे ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गए, देन वी हैव द क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल अप्लाई वेक्टर कैलकुलस आइडेंटिटी, व्हिच वन, दिस प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाइड, कि अगर किसी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस वन। ओके, तो ये सिंपल आपको फॉर्मुलेशन आपने की हुई है, तो उसका हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मुलेशन है दैट विल रिड्यूस टू दिस वन, दैट विल हैव ए टू टर्म्स नाउ। एक में तो क्या है कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर और आर स्क्वायर, आर हैट बाई आर स्क्वायर, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या है, कर्ल ऑफ द करंट, लेकिन करंट तो कर्ल कर नहीं रहा ना, करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है हमारा, उस तरीके से भी देख सकते हो। और ये जो डेल है, डेल ऑपरेटर हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, इन आर पोजीशंस पे काम कर रहा है, जबकि करंट हमारा आर प्राइम पे है। इसका मतलब अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल रिड्यूस टू जीरो। और इसके लिए आपको आइडेंटिटी सोल्व करने के लिए बोला था, जो असाइनमेंट मिली थी उसमें होना चाहिए इसका। तो अगर आप ये दोनों आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट बोथ टर्म टू बी जीरो। एक इसका डाइवर्जेंस निकालना था, एक कर्ल भी निकालना था, तो इसका हमने आर्ग्यूमेंट कर लिया कि जीरो क्यों आ रहा है, इसको आप सोल्व करके दे सकते हो। तो अगर दोनों टर्म ही जीरो है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ पी भी जीरो हो जाएगा, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है मैक्सवेल। ओके, तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट रीअरेंजिंग और चेंजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन टू obtain द मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसका जो कंक्लूजन था पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इट रिप्रेजेंट कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कि डाइवर्ज या कन्वर्ज कब करेगा, कि जब कोई सिंगल चार्ज होता है। अब अगर हमारे पास दोनों ही सिस्टम, दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक साइड से लाइन निकलेगी, फील्ड लाइन दूसरी साइड में एंटर हो जाएगी। तो इसका मतलब जब आप टोटल डाइवर्जेंस देखोगे कि पॉइंट से कितनी डाइवर्ज हुई, तो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पोल पास पास रखे होंगे। अगर आप बिल्कुल आइसोलेटेड करके देखोगे तो उस केस में आपको लग सकता है कि ये मोनोपोल है, बट आप उस सिस्टम को अगर कंसीडर करोगे, इन दैट केस विल हैव द टोटल डाइवर्जेंस जीरो, क्योंकि जितनी लाइन निकल रही थी एक साइड से दूसरी साइड में एंटर हो, सो वी डू नॉट हैव एनी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, व्हेन वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू जीरो, दैट फील्ड और दैट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर पोटेंशियल। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात कर रहे थे ना, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्केलर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सेम वे से मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा दैट विल बी वेक्टर पोटेंशियल। ओके, तो ये हमने लॉजिक पहले भी डिस्कस किया था मैथमेटिकल वाले स्टफ में, तो आई होप वहां से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो मेन हमारा था कि हम मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव कर पा रहे हैं सिंपली डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके। ओके, अब हम फैराडेज लॉ की बात करते हैं। अभी तक तो हम स्टैटिक सिस्टम की बात कर रहे थे ना, सभी स्टैटिक था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था। बट नाउ वी आर मूविंग टू सम डायनामिक सिस्टम। तो फैराडेज लॉ आपने पढ़ा हुआ है और प्लस टू में डेफिनेटली आता है कि ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट रिड्यूस टू that lead to induction of the electric field.
राइट। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के मल्टीपल वे होते हैं। आप फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, जिस एरिया में से फील्ड लाइन पास कर रही है उसको भी चेंज कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल वे, बट मेन रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होनी चाहिए, और उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में दैट विल बी गिवन बाय डी फाई बाय डी टी। कीप इन माइंड दिस फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है दैट डिसाइड कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। अगर फास्ट रेट से चेंज करोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, एंड वी कैन हैव लोअर इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर स्मॉलर रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं विद द क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ओके, एक तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट ऑन द कंप्लीट सरफेस जो भी आप सिस्टम ले रहे हो वहां पर हम क्लोज्ड लूप लेते होते हैं। तो हम क्लोज्ड लूप पे टोटल फील्ड निकाल रहे हैं एक तरह से, कि फैराडेज लॉ की वजह से कितना फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला पता है कि ये दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया। बट टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है कि हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, पहले उसके लिए फ्लक्स निकालते हैं, एंड देन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन। तो हमारे पास एक तरह से एरिया इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे टोटल फ्लक्स के लिए। तो ये जो क्वांटिटी है दिस वन, इसमें जो फाई की टर्म है दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद द एरिया इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट जो लेफ्ट साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ था दैट इज इक्विवेलेंट टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप अगर ध्यान से सुना है आपने तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि हमें करना क्या है। हम एक तरह से इंटीग्रल को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं ताकि डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बने। तो अब यहाँ पर एक साइड तो मेरा लाइन इंटीग्रल है, दूसरी साइड एरिया इंटीग्रल है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं लाइन इंटीग्रल को एरिया में कन्वर्ट कर लूँ या एरिया को लाइन में कर लूँ। तो उसके लिए जो लॉ यूज होगा दैट इज स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम। ओके, नेगेटिव साइन मैंने बात नहीं की, बट दिस इज ऑब्वियस कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। दिस इज ड्यू टू लेंस लॉ, बिकॉज लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उसमें जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। पर मान लीजिए फ्लक्स बढ़ रही है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो इंक्रीज को लोअर डाउन करे। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की टेंडेंसी रहेगी कि वो उसको बढ़ाए, तो यानी उल्टा काम करना है इसने। ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन हम साथ में रखते हैं। सो नाउ वी हैव दिस सिचुएशन सो फार। यहाँ वाली इक्वेशन से जो इक्वेशन 1 है इससे हम इक्वेशन 2 पे आ गए। एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रल है, बट एक तरफ क्लोज लाइन इंटीग्रल है, दूसरी तरफ एरिया इंटीग्रल है। तो जैसे हम पीछे करते रहे विल डू द सेम थिंग कि लाइन इंटीग्रल को एरिया इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, और फिर एरिया इंटीग्रल दोनों तरफ रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। we'll use the Stokes theorem, and according to Stokes theorem closed line integral will be equal to area integral of the curl of the electric field। तो हम ये यहाँ पर अगर यूज करेंगे what we'll get this new identity जिसमें दोनों साइड एरिया एलिमेंट है या एरिया इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल कह सकते हो। इसका मतलब इंटीग्रेंड की वैल्यू सेम है। सो विल हैव डेल क्रॉस सी इक्वल टू डी बाई डी टी, जो हमारी वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन है ना। तो अगर आपको रिवर्ट बैक करना, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर बी स्टैटिक हुआ यानी बी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में क्या होगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, दिस वन। तो जो अभी हम थोड़ी देर पहले ड्राइव किए थे, कल ड्राइव किया था, विल रीच अप टू द सेम थिंग कि जो डेल क्रॉस सी है वो 0 रहेगा।
तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वेदर इट इज स्टैटिक और डायनामिक। लेकिन जो हमने पीछे ड्राइव की थी डेल क्रॉस C इक्वल टू 0, वो स्पेसिफिक केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। Okay, so now we are able to manage all the Maxwell equation, most of the Maxwell equation. If we just summarize, अभी तक मैक्सवेल की करेक्शन आई नहीं है, जिसने उसने थोड़ा सा ही चेंज किया था, क्रेडिट पूरा ले रखा है उसने। गॉस लॉ हमने ड्राइव कर लिया, दैट इज फाइन। Gauss law in magnetostatic we managed to get it. We managed to get Ampere's law, but there is no correction yet. And then Faraday's law. तो ऑलमोस्ट हम काफी हद तक पास पहुंच गए हैं। सिर्फ एक इशू रह जाता है इस वाले इक्वेशन में, इसमें इनकंसिस्टेंसी आती है, उसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या इशू है। वो सिचुएशन आती है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम पोजीशन के साथ चेंज होता है, तो उस केस में ये जो एम्पियर्स लॉ है वैलिड नहीं रहती। उसकी क्या रीजन है और उसको फिक्स कैसे किया गया, ये मेनली मैक्सवेल का रोल था। ये कह सकते जो मेन रोल था उसका यही रोल था, बाकी सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन चेंज करने की बात है। सो बिफोर मूविंग टू दैट, अगर किसी भी डेरिवेशन में किसी तरह का इशू, सो शुड आई अज्यूम जो साइलेंस है उसका मीनिंग ये है कि सब समझ आ रहा है, और आई शुड अज्यूम कि सब ऊपर से जा रहा है। एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्ड करो बच्चे, ताकि पता लग पाए कि कंटेंट हो रहा है नहीं हो रहा। सर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है? किसका, दोनों का? यस सर। वो तो हमने डिस्कस किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर जनरल फॉर्मुलेशन लिखना है तो मेन जीरो आएगा, लेकिन हम अगर डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर बी चेंज हो रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रोटेटिंग होता है। अगर आप उस सेंस में भी देखो, रोटेशनल होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशनल नहीं होता। सर कर्ल अगर जीरो नहीं होगा तो फिर वो कंजर्वेटिव कैसे होगा वो फील्ड? तो हमने तो कहा ही नहीं कि कंजर्वेटिव है सर, ऐसा मैंने पढ़ा था सर। कंजर्वेटिव जो होता है वो सिर्फ उस सिचुएशन में होगा जब हमारा एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उस सिनेरियो में वो डेफिनेटली कंजर्वेटिव होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तब नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, वो स्पेसिफिक केस हो जाता है हमारा। जैसे जब हम ड्राइव कर रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन, तो जब हमारी सिचुएशन पीछे आई थी, यहाँ पर डेल क्रॉस C 0 आया था, तो अगर हम सिर्फ वहां तक खुद को लिमिट रखें, उस सिचुएशन में कंजर्वेटिव आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हमने वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, उस केस में दिक्कत है, फिर कंजर्वेटिव नहीं कह सकते उसको। Any other question? Okay. चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो इनकंसिस्टेंसी थी हमें। मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंसी थी स्टार्टिंग में, और उसको जो सोल्व किया वो भी मैथमेटिकल टेक्निक से ही सोल्व किया गया था। उसके बाद उसमें कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन हुआ था कि ठीक है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस सर्च करने की कोशिश की गई। तो दैट कम्स एट द लेटर स्टेज, बट जब इशू आया था तब टोटली थ्योरेटिकल था, और उसका सोल्यूशन भी थ्योरेटिकल ही निकाला गया था। सो बिफोर गोइंग टू दैट, you should remember all these 4 equation, क्योंकि इन चारों का यूज करेंगे अभी। And what we try to calculate, let us try to figure out divergence of the curl of the electric field.
हमें इस क्वांटिटी को सोल्व करना, ठीक है। एक तो जब हम मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रहे थे या टूल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इसी कर्ल का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस लेते तो वो 0 आता है, जो आपको असाइनमेंट में मिली थी। तो एक चीज तो ये श्योर है कि ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए आप डेल क्रॉस सी के लिए ये आइडेंटिटी यूज कर लो, है ना, डी/डी ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लिया। इसको हम डाइवर्जेंस को अंदर ले गए, क्योंकि x और t डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ b क्या होता है, 0 होता है ना, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 आ रही है। तो इन मैक्सवेल इक्वेशन से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि ये चीज 0 आ रही है। और दूसरा अपना जो वेक्टर कैलकुलस था उससे भी ये क्लियर है कि ये 0 होगी, बिकॉज इफ वी टेक डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर दैट इज ऑलवेज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो अच्छा लग रहा है सब कुछ कि दोनों साइड 0 आ रहा है, दोनों टेक्निक से। मैक्सवेल इक्वेशन यूज करो या फिर आप वेक्टर कैलकुलस या विदाउट एनी फिजिक्स सिंपल कैलकुलस यूज करो, तो कंसिस्टेंसी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिचुएशन लेके जाते हैं कि हम यहाँ पर जो हमने कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस निकाला था, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें, so what we will get, whether the consistency is still there or not, उस केस में क्या होगा, we'll have some problem। ये चीज तो एक तो 0 होना चाहिए, कैलकुलस के अकॉर्डिंग तो 0 बनती है ना। वही सेम लॉजिक की डाइवर्जेंस लोगे अगर किसी कर्ल ऑफ ए वेक्टर का, तो वो 0 होता है। सो दैट इज फाइन, बट मैक्सवेल इक्वेशन से क्या बनेगा, डेल क्रॉस बी ये इक्वेशन यूज करना है। सो वी विल गेट डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे, और म्यू नॉट जे इंटू डाइवर्जेंस ऑफ जे। बट ये तो 0 हो कोई जरूरी नहीं। अगर जे पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा उस केस में तो ठीक है, स्टेबल सिस्टम है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, लेफ्ट और राइट साइड दोनों 0 हो गए। अगर स्टडी करंट है यानी चेंज नहीं हो रहा पोजीशन के साथ, तब तो इक्वेशन ओके है, कुछ भी नया डालने की जरूरत नहीं है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि आपके पास स्टडी करंट हो, वी कैन हैव वेरिंग सिस्टम एज वेल। तो अगर वेरिंग सिस्टम होगा तो उस केस में डाइवर्जेंस ऑफ जे 0 नहीं होगा, तो फिर तो ये इक्वेशन गलत हो गया कि कैलकुलस के अकॉर्डिंग तो 0 आना चाहिए था, बट मैक्सवेल इक्वेशन की लॉजिक लगा के ये बन रहा है कि वो नॉन 0 आएगा। वहां पर प्रॉब्लम आ गई सारी कि अगर हमारे पास वेरिंग करंट है, इन दैट केस डाइवर्जेंस ऑफ जे विल कम आउट टू बी नॉन 0, लेकिन वेक्टर कैलकुलस के अकॉर्डिंग वो 0 होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने अपना रोल प्ले किया था। और इसका एक कंक्लूजन ये भी कह सकते हो कि जो एम्पियर्स लॉ है दैट इज ओनली वैलिड फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। जब भी हम मैग्नेटोस्टैटिक से बाहर निकलेंगे या जब भी हमारा फील्ड चेंज होगा, in that case we will be in trouble. So we need to fix this Maxwell equation or this equation for consistency throughout, कि सभी सिनेरियो में एप्लीकेबल रहे। स्टडी स्टेट के केस में कोई इशू नहीं है, ऊपर वाली चारों इक्वेशन वैलिड है, सब सही आ रहा है। बट जब वेरिंग होगा उस केस में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए इसने क्या किया, थ्योरेटिकल इशू आ रहा है तो थ्योरेटिकल आइडिया लगाया इसने कि क्या कर सकते हैं। कोई फिजिक्स मोटिवेशन नहीं थी इसके पास, सिंपली मैथमेटिक्स डाल के फिगर आउट किया कि हम बस इक्वेशन सेटिस्फाई करवा देते हैं, दैट्स ऑल। ये वाला काम किया इसने। व्हाट ही डिड, यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट तक। ये एक साइड हमारे पास डाइवर्जेंस जे आ रहा है, दूसरी साइड 0 है। तो हमें इस लॉ को, जो डेल क्रॉस बी वाला लॉ है, इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि ये क्वांटिटी 0 हो जाए। सिंपल सी बात है। लेफ्ट हैंड साइड 0 हमने वेक्टर कैलकुलस से कर दिया, इसको भी 0 करना है हमने, तभी कंसिस्टेंसी बनेगी ना। और वो रिक्वायर करता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे हमारा 0। तो ये 0 कब होगा ये देखते हैं, या हम क्या चेंजेस करें जिससे कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी 0 आ जाए। अगर आप बिल्कुल बेसिक आइडिया लगाओ तो उसका मीनिंग ये होगा कि हमें करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी।
अभी तक जो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, सिंपली ये कह रहे हैं कि करंट पर यूनिट एरिया दैट इज नॉट गुड इनफ, वी नीड टू हैव सम एक्स्ट्रा टर्म जिससे हमें एक नई करंट डेंसिटी मिले। अगर वो यूज करें तो जीरो हो जाए, तो वो देखना है कि वो करंट डेंसिटी क्या आती है। उसके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशंस यूज की गई कि ये इक्वेशन याद कर लो आप, वैसे ग्रिफिथ में दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मुलेशन है। इसको जो हमारी डेफिनेशन होती है ना, हाँ, करंट की डेफिनेशन होती है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वो सॉर्ट ऑफ इंटीग्रल फॉर्म में जाता है, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है, ग्रिफिथ में दिए हुए हैं, यू कैन डू दैट। एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन के नाम से सर्च कर सकते हो। हार्डली 3 या 4 स्टेप हैं और सभी स्टेप रिपीटेटिव है, जो हमने अब तक किए उनका रिपीटेशन ही है। जो चार्ज है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इंटीग्रल के टर्म में लिखा है और करंट को करंट डेंसिटी के टर्म में लिखा है, एंड देन इट इज एप्लीकेशन ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, तो स्टेप बहुत सिंपल है इसके। तो हमारे पास करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज फॉर्मुलेशन ऑफ रो। रो का फॉर्मुलेशन कहाँ से यूज कर रहे हैं हम, इस मैक्सवेल इक्वेशन से, कि रो विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम और पोजीशन कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, वी कैन इंटरचेंज द ऑर्डर। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, तो उसके बाद आप टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। ये जो टर्म है हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, विल गेट कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ जे जो था वो इस क्वांटिटी के इक्वल आया, तो अगर हम डाइवर्जेंस इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी के लें तो वो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैक्सवेल ने बोला कि हम इस जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ना, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, ये करंट डेंसिटी नहीं है। तो जो जे था इस इक्वेशन में, जो मैक्सवेल की सजेशन थी कि इस जे को अब जे प्राइम से रिप्लेस कर दो। अब जे प्राइम में 2 कंट्रीब्यूशन है, वन स्टैंडर्ड जे, स्टैंडर्ड करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, और एक नया करंट डेंसिटी इंट्रोड्यूस होता है। क्यों इंट्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उस केस में तो ये टर्म चली जाएगी, तब तो हम अपने स्टैंडर्ड सिनेरियो में, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब भी हमारे पास वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में एक नया करंट इंट्रोड्यूस होता है, या करंट डेंसिटी कह लीजिए, करंट इंट्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कर बात करते हैं उसकी। बट सिंपल लॉजिक इसका जो था कि इसने मैथमेटिकल इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया और करंट डेंसिटी को रीडिफाइन किया, ताकि हमारी जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पर इसने कोई भी फिजिक्स नहीं लगाई थी, बट बाद में बाय चांस कह लो या बाय नेचर, क्योंकि मैथमेटिक्स भी नेचुरल सब्जेक्ट है, हो सकता है कि ना लगे, बट नेचुरल स्टेप है इसमें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गोइंग थ्रू नेचर्स वे, और फिजिक्स में भी नेचर्स वे है। तो मैथमेटिकली अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस है तो मोस्टली वो फिजिकली ऑब्जर्व की जा सकती है। कब की जाए, किस सिनेरियो में होगी, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम सभी चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते करंट सिनेरियो में। तो उस टाइम पर उसने ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डाला था कि करंट डेंसिटी को चेंज कर देता है, और he managed to fix the inconsistency, जो अभी हम तक बात कर रहे थे। So what he did, that del क्रॉस B जो हमारा म्यू नॉट इंटू जे था, इसको म्यू नॉट जे प्राइम लिख दिया, और जे प्राइम की जगह जो हमारी डेफिनेशन पीछे निकाली थी वो रिप्लेस कर दी, एंड एज ए रिजल्ट we reach up to this point that del cross B is equal to mu naught J
plus one additional term which depends on the variation of electric field with time. ओके, तो ये नया एम्पियर्स लॉ है, या मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ कह लीजिए, क्योंकि मैक्सवेल ने करेक्शन किया इसमें, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट के केस में सेकंड टर्म हमारी 0 आ जाएगी एंड वी विल गो बैक टू एम्पियर्स लॉ, जो हम काफी बार बोल चुके हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है, दिस वन, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, हालांकि करंट डेंसिटी जैसा ही है बट इसका ओरिजिन डिफरेंट है। पहले वाला करंट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ कि वहां पर चार्ज करंट फ्लो कर रहा है, उस वजह से करंट डेंसिटी आई। सेकंड जो करंट डेंसिटी है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, बट दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है नया जो इंट्रोड्यूस होता है इसमें। तो ये जो लॉ है ये जनरल लॉ बन जाता है। जैसे एम्पियर्स लॉ हमारा स्पेसिफिक केस में वैलिड था, स्टेडी स्टेट के केस में, लेकिन जो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ है ये सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, या हमारा स्टडी सिस्टम हो या वायरिंग करंट, कोई इश्यू नहीं है, दोनों के लिए चलता है। ओके, तो इसके साथ ही वी मैनेज टू फिक्स ऑल द इक्वेशंस और वी मैनेज टू ऑब्टेन ऑल द इक्वेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, जो अभी हम थोड़ी देर पहले इनकंसिस्टेंसी चेक कर रहे थे ना, तो आपने वेरीफाई करना है कि ये मॉडिफाइड लॉ के साथ क्या हम अब कंसिस्टेंसी ऑब्टेन कर पाए या नहीं कर पाए। तो जो पीछे वाले स्टेप थे ना उनको रिपीट करना है आपने। तो ये वाले स्टेप थे इस इक्वेशन के साथ जो हमने स्टेप लिखे थे, उनको रिपीट करना है आपने। एंड यू हैव टू सी कि दोनों साइड 0 बन रहा है नहीं बन रहा। इस साइड तो ऑब्वियस सी बात है 0 बन ही रहा था, ये वाली इक्वेशन 0 बनेगी या नहीं बनेगी, दैट यू हैव टू सी। ओके, सो दैट ब्रिंग मी टू लास्ट पॉइंट। ओके, ये कंक्लूजन तो ऑब्वियस है कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है फैराडेज लॉ में। तो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ से नया आइडिया क्या पिक्चर में आया कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था उस टाइम पे, बट टाइम के साथ ये चीज सही बनी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी वैलिड है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, वो परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट दीज टू आर इंटर रिलेटेड। कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो अगर ये नेचर में ट्रू नहीं है दीज इक्वेशन, तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन विच वी get from this mathematical stuff of the Maxwell amperes. Then this is the simple the Maxwell equation in free, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। Keep in mind ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं फ्री स्पेस में लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज हैं एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये फ्री स्पेस की है। जब किसी मीडियम में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कुछ और चेंजेस आते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते हैं। तो एक और असाइनमेंट आपकी क्या है कि ये जो 4 इक्वेशन हमने लिखी है, यू हैव टू राइट डाउन फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ ऑल दिस इक्वेशन। मीनिंग क्या है इनका, किस चीज को इंटरप्रेट करवा रही है। मैथमेटिकली कुछ नहीं करना आपने, आपको सिर्फ फिजिक्स वाइज इनसे जो भी आपने लर्न किया है वो मैसेज एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग बुक में अलग तरीके से लिखा हो सकता है, दैट इज ऑल योर टैलेंट, but you have to extract physics message of all these 4 equation, या कह लीजिए importance extract करनी है इनकी 4 equation की। So that brings us to end of this chapter, not chapter sorry, अभी हम EM की बात करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हम वहां पे पहुंचे कैसे और हर एक इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वन थिंग इज ऑब्वियस कि बेसिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक के लॉ हैं, दैट्स ऑल। सिर्फ उनका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन चेंज किया हुआ है कि जो स्टैंडर्ड लॉ है वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, बट जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल फॉर्म में। सो नाउ वी कैन टेक क्वेश्चन इफ यू हैव एनी।
Okay, fine. Friday को आपका टेस्ट है and that will be based on all the oscillator chapter starting from SHM to FOST. I'll just drop a message in the WhatsApp group in case कोई स्टूडेंट मिस कर दे उसको तो. So we'll meet on Friday.